Hello everyone. After discussing the first unit of chapter 6, class 9, chapter 6, lines and angle, today we will discuss about the concept of parallel lines. Okay, so let's start class 9, chapter 6, lines and angle. The topic is parallel lines and transversal. Okay, now let us discuss what are parallel lines. Parallel lines, two lines whose distance is equal at each and every point and they never intersect each other. They never intersect each other, either extended endlessly in both the direction. मतलब कि दो लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होती है और उसे कितना भी आप बढ़ा दें, लेफ्ट बढ़ा दें, राइट बढ़ा दें, कहीं भी बढ़ा दें, ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. दैट आर नोन एज पैरेलल लाइंस. क्या कहेंगे उनको? पैरेलल लाइंस. ओके, नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्सल? The line which intersect two or more line, that is known as two or more parallel line. Any simple two or more line, a line which intersect two or more line, that is known as transversal. Suppose this is T is a transversal. Okay, so here L is parallel to M and T is a transversal. Now let us consider these things. Now when two parallel line intersected by a transversal, then 8 angles are formed. What are they? Name them. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8. These total 8 angles are formed. Okay, now between these many type of angles are formed. We say them corresponding angle, alternate angle and co-interior angle, and they have different type of properties. First, see alternate interior angle. Alternate angles. So alternate angles are two type: alternate interior angles. What are alternate interior angles? See here. Interior means inside the parallel lines. Inside the parallel line. These are the interior part of parallel lines. Okay. So alternate interior angles are angle 4, angle 6. These two angles 4 and 6 are alternate interior angle. Remember one thing, these all angles lies in pair. ये सभी एंगल्स किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं. तो ये 4 अल्टरनेट, 4 का 6. ओके, देन इंटीरियर एंगल 3, एंगल 5. ओके, रिमेंबर इट. 4, 6, 3 and 5. 4 and 6, 3 and 5. ओके, नाउ सेकेंड अल्टरनेट एक्सटीरियर. Alternate ALT, alternate exterior angles. अब ये क्या क्या होगा? अब एक्सटीरियर में आप पैरेलल लाइन के बाहर चले जाओ. 2 का एक्सटीरियर क्या होगा? 8. एंगल 2 कॉमा एंगल 8. ओके, एंगल 2 कॉमा एंगल 8 and angle 1 comma angle 7. Angle 1 comma angle 7. Is it clear? So after alternate interior angle and alternate exterior angle, the next one is corresponding angle. Corresponding angle. Now what are corresponding angle? Corresponding angle, angle 1 and angle 5.
Angle 1 and angle 5 both are corresponding angle to each other. Angle 1, angle 5, angle 2, angle 6, angle 2, angle 6. See here, this is at the same side of transversal. एक एंगल, उसके बाद दूसरा छोड़ के अगला एंगल जो है उसका करस्पॉन्डिंग होगा. जैसे 1 4 छोड़ दिया 5, 1 का 5, 2 का 6. ठीक इसी तरह 4 का 8, एंगल 4, एंगल 8 और अगला 3 का 7, एंगल 3, एंगल 7. ओके. करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 पेयर्स 4 6 एंड 3 5, 4 6 एंड 3 5. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 पेयर्स 2 8, 2 8 एंड 1 7. करस्पॉन्डिंग एंगल 4 पेयर्स 1 5, 1 5, 2 6, 4 8 and 3 7. Okay. Now let us recall next type of angle, co-interior angle. Co-interior angles, और इसे और क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, same side of transversal. ठीक है. को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल क्या है? ये और ये है. एंगल 3 एंड एंगल 6 और फिर एंगल 4 और एंगल 5. ठीक है. ये आपके 4 टाइप्स के एंगल हो गए. व्हेन 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, देन 4 टाइप ऑफ एंगल्स आर फॉर्म. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. नाउ दीज एंगल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. मीन्स what are the property alternate angles have? Alternate angles are equal. It means what the value 3 have, the same value 5 have. 3 की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही 5 की वैल्यू होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरम्स डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एंगल्स. ओके. 4 की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही 6 की वैल्यू होती है. मतलब कहने का अगर 3 50 डिग्री का है तो 5 भी क्या होगा? 50 डिग्री का होगा. ओके. करस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी वैल्यू इक्वल होती है. 1 एंड 5, 1 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही 5 की वैल्यू होगी. 2 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही 6 की वैल्यू होगी. 4 की जितनी वैल्यू होगी उतनी 8 की वैल्यू होगी. 3 की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही 7 की वैल्यू होगी. ठीक है. अगला है को इंटीरियर एंगल. अब को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये 3 और 6 जो को इंटीरियर एंगल है, द सम ऑफ दीज टू कॉन्जिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो इसका सम होता है 180 डिग्री. दीज आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सप्लीमेंट्री एंगल बताया था मैंने. 2 एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर. तो इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री. ठीक इसी तरह 4 और 5 का सम क्या होगा? 180 डिग्री. इसके अलावा इन 4 एंगल्स के अलावा और भी एंगल बनते हैं जिसको आप पढ़ चुके हैं. सपोज लेट लाइक वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ देखिए 2 का 4 बन रहा है, 1 की 3 बन रही है, 6 का 8 वर्टिकली अपोजिट है, 5 का 7 वर्टिकली अपोजिट है. और वर्टिकली अपोजिट थ्योरम भी मैंने बता दिया आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद लीनियर पेयर भी बन रहा है 1 2, फिर 2 3, 3 4, 4 1. ओके. लाइक दैट 5 6, 6 7, 7 8 and 5 8. Okay. So first you have to write the definition of parallel line, transversal, and then angles. Angles made when 2 parallel lines intersected by a transversal. ठीक है. These 4 types of angles.
and after it linear pair of angle and vertically opposite angles also formed. Now see theorems on parallel lines and transversal. The first one is given, corresponding angle axiom. First let us tell you what are axiom. Axioms are some statements which are not required to prove, they are accepted truth. मतलब ऑक्जियोम वो स्टेटमेंट होते हैं जो ऑलरेडी क्या है, एक्सेप्टेड होते हैं, इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्जियोम सम थ्योरम्स इज टू बी प्रूव्ड. विद द हेल्प ऑफ ऑक्जियोम सम थ्योरम्स विल बी प्रूव्ड. ओके, तो ऑक्जियोम इज इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. मतलब जो हमने बताया आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल लास्ट में कि दिस एंगल एंड दिस एंगल करेस्पॉन्डिंग, दिस एंगल एंड दिस एंगल करेस्पॉन्डिंग, फिर इसका 3 का 7 होगा और 4 का 8 होगा. ये देखिए उसमें 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, तो उससे जब इसको मैच करेंगे तो ये गलत होगा. इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ कहाँ है, पोजीशन के अकॉर्डिंग. क्योंकि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो कहीं भी 1 दिया जा सकता है, 1 यहाँ से शुरू हो सकता है, 1 यहाँ से शुरू हो सकता है. तो आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको ये पोजीशन समझनी है कि कहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल है और कहाँ इंटीरियर एंगल है और कहाँ को इंटीरियर एंगल है. ओके, सो without the help of axiom no theorem can be solved, and theorems are the statement which needs to prove. थ्योरम वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, और थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम ऑक्जियोम का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं. अंडरस्टैंड? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑक्जियोम लेट अस प्रूव थ्योरम 6.2. जो हमने बताया, हमने आपको बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑक्जियोम में ये दिया गया है. उसके बाद हमने बताया अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ये थ्योरम है. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखिए गिवन में आपके क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी, ये फिगर है आपका ए बी पैरेलल सी डी एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल. ओके, अब देखो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, मतलब 3 इज इक्वल टू 5 एंड 4 इज इक्वल टू 6. ये आपको प्रूफ करना है कि 4 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इज इक्वल टू 5. कैसे प्रूफ करोगे, देखो प्रूफ वी हैव, हमने लिख दिया वी हैव. अब किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल किया जाता है. हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ चुके हैं, और एक ऑक्जियोम हम अभी पढ़े हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से हम ये दिखा सकते हैं कि वी हैव रूट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. वाई, क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, अब 3 और 1 बराबर हो गया, हमें क्या बराबर करना है, 3 इक्वल टू 5. तो देखो बेटा ये 1 के इक्वल हम इसको दिखा देंगे 5 को. वाई, बिकॉज ऑक्जियोम सेड दैट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये 1 और 5 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. ठीक है, यहाँ लिख देंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. अब देखो 3 इक्वल टू 1 हो गया और 1 इक्वल टू 5 हो गया. ठीक है ना, तो 3 इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू 5, तो 1 की जगह पे यहाँ हम 5 लिख सकते हैं. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ये हमारा पहला प्रूफ हो गया. ठीक है, ठीक इसी तरह दूसरे पे आइए, 4 इक्वल टू 6 प्रूफ करना है. 4 इक्वल टू 6, तो ठीक इसी तरह दिखा देंगे 4 इज इक्वल टू 2. अगेन वी हैव एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, 4 इक्वल टू 2 हो गया. अब आपको 2 इक्वल टू 6 दिखाना है.
सॉरी 4 इक्वल टू 6 दिखाना है, 4 इक्वल टू 2 हो गया, अब 2 इक्वल टू आप 6 दिखा दीजिए, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, वाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, देयरफॉर अब 4 इक्वल टू 2 हो गया और 2 इक्वल टू 6 हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। ओके, फिर से इसको समझते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है, 3 इक्वल टू 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। देखो 3 इक्वल टू 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 प्रूफ करना है। तो पहले हमने क्या दिखा दिया, 3 इज इक्वल टू 1, ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। 1 के बराबर 3 भी हो गया और 1 के बराबर 5 भी हो गया, 5 ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 3 और 5 आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए। ठीक इसी तरह 4 और 6 जब दिखाना है तो 4 इक्वल टू 2 हो गया और 2 इक्वल टू 6 भी दिखा दिया, तो 4 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल टू 6, 2 के बराबर 6 भी है, 2 के बराबर 4 भी है, तो 4 और 6 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये आपका हो गया थ्योरम 6.2। अब थ्योरम जो है 6.3 है, 6.3 थ्योरम देखिएगा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या दिया, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। 6.3 इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2। कन्वर्स मतलब क्या होता है, उसी का उल्टा होता है। तो उसमें क्या दिया है कि इफ alternate interior angles are equal when two line intersected by a transversal, ये नहीं कहा गया कि दोनों लाइन पैरेलल है, when two line intersected by a transversal and alternate angles are equal then prove that these two lines are parallel to each other। ये इसी का उल्टा है। उसमें क्या, इसमें क्या दिया गया है कि दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो एट दैट टाइम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और उसमें क्या दिया है कि जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल, वहाँ पैरेलल नहीं लिखा हुआ है, दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में आपको ये दिखाना है कि ये दोनों लाइन अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो आपको ये बताना है कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे की पैरेलल है। लेट्स सी, नाउ सी थ्योरम 6.3, as I have told you that this is the converse of theorem 6.2. Theorem 6.2 states that when two parallel lines intersected by a transversal then alternate interior angles are equal. But here what is given, see here, if a transversal intersect two lines, not parallel lines is not given, you have to prove that it is a parallel line, only it is given alternate interior angles is equal. Okay, if two lines intersect by a transversal then alternate interior angles are equal, then prove that two lines are parallel to each other. Now what to do, again draw two lines, that is AB and CD. This is transversal T, it makes many angles, 1 2 3 4, okay, 5 6 7 and 8. See here, because I have started from here 1, that is 5 6, this will be 7 and this will be 8. Now see, again in the starting of any theorem you have to write given. What is given? Listen, I will not write here, listen what I am saying. Given AB parallel CD, AB parallel CD. In the last question I have written like this, AB parallel CD, okay, but here what we will write, we will not write AB parallel CD. हम AB parallel CD यहाँ नहीं लिखेंगे, हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे, a transversal T intersect AB and CD such that, क्या इसमें कहा गया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो किसी भी अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दो, सच दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये गिवन हो गया आपका। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है AB पैरेलल CD। अब AB और CD पैरेलल कैसे होगा, पैरेलल ये होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि ऑक्जियोम है ऑलरेडी कि if
two lines intersected by a transversal and corresponding angles are equal, then these two lines are parallel to each other. ठीक है, तो हम ये क्या दिखा देंगे, हम दिखाएंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. किसी भी करस्पॉन्डिंग एंगल को दिखा देंगे 2 = 6 दिखा देंगे. कैसे दिखाएंगे, लेट्स प्रूव. हाँ, तो क्या दिया गया है, एंगल 3 = एंगल 5 है. क्या है ये, गिवन है. ठीक है, गिवन है. 3 = 5 ये गिवन हो गया. ओके, अब हम दिखा देंगे 3 = 1. एंगल 3 = एंगल 1. वाई, क्यों ये इक्वल है, ये 3 और 1 क्यों इक्वल है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों हैं तो ये इक्वल है. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब 3 = 5 है और 3 = 1 भी है. ठीक है, फिर से देखो 3 = 5 गिवन है, ये दिया गया है, और 3 = 1 हमने दिखा दिया. ठीक, तो ये क्या हो गया, 1 और 5 भी आपस में इक्वल हो गए. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल 1 = एंगल 5. ओके, अब 1 और 5 हो गया, बट these are corresponding angles, okay, made by lines AB and CD. Therefore AB is parallel to CD. क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, दो चीज़ें हमने ऑक्जियम में हमने बताया था कि व्हेन पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और उसका भी कन्वर्स होता है कि इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस Theorem 6.4. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary. Each pair of interior angle or co-interior angle. Again recall it. I have told you about the corresponding angle axiom. Okay. In the starting of this video, I have told you the corresponding angle axiom. On the basis of this corresponding angle axiom, all the theorems 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5 is going to be solved. Every axiom or theorem have its converse also. So what are the, recall that corresponding angle axiom. I have told you that if two parallel line intersected by a transversal, then the corresponding angles are equal. Again, what is its converse? कि if two line intersected by a transversal, not parallel line, only two line intersected by a transversal, if two line intersected by a transversal and corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. कहने का मतलब है कि अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर किसी भी दो लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे. ठीक है, ठीक इसी तरह अब ये दो थ्योरम है 6.4 और 6.5, बोथ आर कन्वर्स टू ईच अदर. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. ओके, तो लेट अस सी, दिस इज ए बी, this is CD, two lines are parallel to each other, this is transversal T. Okay, these are the angle 1, 2, 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8. Okay, now what is given here, two parallel line. तो given यहाँ क्या लिखोगे, given लिख लोगे, क्या लिखोगे given में, two lines AB is parallel to CD and T is a transversal. Okay, AB parallel CD, AB parallel CD and T is transversal. अब T ट्रांसवर्सल हो गया. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों 180 डिग्री, और ठीक इसी तरह एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए. अब प्रूफ में आप करोगे कि देखिए
आपको ये दिखाना है 3 + 6 = 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ 180 का कॉन्सेप्ट है तो आप लीनियर पेयर में जाओगे। लीनियर पेयर में क्या है कि द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ एंगल 4 + एंगल 3, ये और ये दोनों कितने के हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, बात समझ में आ रही है। 4 + 3 = 180 डिग्री और 4 = 6 होगा। अभी हमने प्रूफ किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एंगल 4 = एंगल 6, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखो 4 + 3 = 180, तो ये 4 = 6 हो गया। तो यहाँ हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 + एंगल 3 = 180 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया, 3 + 6 = 180 डिग्री। ठीक इसी तरह आपको क्या करना है, 4 और 5 को प्रूफ करना है। ठीक, तो इसी को करेंगे, 4 + 3 = 180 डिग्री लीनियर पेयर एंड 3 = 5 दिखा देंगे, तो 4 + 5 = 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब 6.5 थ्योरम पे ध्यान दीजिए। 6.5 थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब इसमें ऑलरेडी दिया गया है, इसमें तो प्रूफ करना था 3 + 6 180, इसमें ऑलरेडी गिवन है 3 + 6 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 + 6 ऑलरेडी 180 डिग्री गिवन है, तो यहाँ थोड़ा सा गिवन चेंज हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन होगा क्या कि AB एंड CD are 2 lines intersected by transversal T. Okay, intersected by transversal T and angle 3 + angle 6 = 180 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है, 2 प्रूफ में, 2 प्रूफ AB पैरेलल CD। तो AB पैरेलल CD प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी आप या तो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा सकते हो या तो अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दो। तो 2 प्रूफ AB + पैरेलल टू CD। तो अब प्रूफ कैसे करेंगे इसका, देखो अब इसको प्रूफ करेंगे कि गिवन है एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री। समझ गए, और उसके बाद से दिखा देंगे कि ये 3 + 4 भी हमारा 180 डिग्री है, एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। ये गिवन है और ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये इक्वल हो गया। अब जब ये इक्वल हो गया, ठीक, तो देखो यहाँ एंगल 3 + एंगल 6 = एंगल 3 + एंगल 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 3 और 6 भी 180 के बराबर है, 3 और 4 भी 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंगल 3 + एंगल 6 = एंगल 3 + एंगल 4। 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 3 3 जब कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया एंगल 6 = एंगल 4। यहीं हम लिख सकते हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर AB पैरेलल CD। ओके, और अगर आपको करना हो तो 4 = 2 भी दिखा दीजिए, बट एंगल 4 = एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 4 और 2 भी बराबर हो गया तो 6 और 2 हम लिख देंगे इक्वल है, देयरफॉर एंगल 6 = एंगल 2। ठीक, अब ये 6 और 2 बराबर हो गया, तो 6 और 2 जब बराबर हो गया तो लिख देंगे दीज आर, क्या, कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय लाइन AB एंड CD, देयरफॉर AB पैरेलल CD। ओके, तो आप दोनों दिखा सकते हो। आप यहाँ पे जो है
6 इक्वल टू जब 4 आ गया तो यहीं भी यहाँ भी लिख सकते हो, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देयरफॉर AB पैरेलल CD, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेड बाय द लाइन AB एंड CD देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से दिखाना है तो 4 इज इक्वल टू 2 दिखा दो, और 4 इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी आ ही रहा है, तो 2 इज इक्वल टू 6, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल मेड बाय द लाइन AB एंड CD देयरफॉर AB पैरेलल CD। ठीक है, तो ये आपके 4 थ्योरम हो गए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टुडे वी हैव डिस्कस्ड हियर axiom on corresponding angles. Before it I have told you parallel line and transversal. When parallel line intersected by a transversal, then how many type of angles are formed. After it I have told you axiom on corresponding angle and its converse. Okay, if two parallel line intersected by a transversal, then the corresponding angles are equal, and if two line intersected by a transversal such that corresponding angles are equal, then the two lines are parallel to each other. This is its converse. तो आपको ये दोनों लिखना है, ये प्रूफ नहीं करना है। Axiom is no need to proof. Okay, with the help of axiom theorems are going to be solved. उसके बाद था थ्योरम 6.2 एंड 6.3। 6.2 थ्योरम था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 6.3 था कि इसका कन्वर्स, कि when two line intersected by a transversal such that alternate interior angles are equal, then prove that two lines are parallel to each other. ठीक इसी तरह था 6.4, when two parallel line intersected by a transversal, then the sum of interior angle on the same side of transversal is 180 degree. ठीक है, और इसका कन्वर्स था कि if two line intersected by a transversal such that the sum of interior angle on the same side of transversal is 180 degree, then the two lines are parallel to each other. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको अपने नोटबुक में कर लेनी है। After it, before starting exercise 6.2, 3 examples has been given. Example number 4, 5 and 6. You have to also note that example in your notebook, and on the basis of these theorems you have to understand it. In the next video I will solve exercise 6.2 with the help of these theorems and axiom. Okay, thank you, thanks for watching this video. For more video, for the notification of new video, you have to like, comment and subscribe my YouTube channel Devesh Sir Maths Classes, and press the bell icon so that you can get the notification of new videos. Up to then, thank you very much.